الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالآخر سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے اور اس زندگی میں انسان کا مقام و مرتبہ کچھ بھی ہو، اختتام کار اسی حالت میں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے احکام میت کے حوالے سے جو ورک شاپ شروع کی تھی، آج اس کا سیکنڈ سیشن ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا ایک مسلمان کے مر جانے کے بعد سب سے پہلے جو چیزیں واجب ہیں ان میں 5 چیزیں ٹوٹلی واجب ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے غسل ہے جو واجب ہے۔ غسل کے بعد قنوت ہے، یعنی کافور کا اعضائے سجدہ پہ لگانا، 7 parts which is واجب to touch floor during the سجدہ۔ قنوت کے بعد کفن ہے جو کہ 3 کپڑوں میں دیا جانا واجب ہے۔ ایک کپڑا جو ناف سے نیچے باندھا جائے گا، دوسرا کپڑا جو گردن سے لے کر تقریباً رانوں تک آئے گا، زانوؤں تک آئے گا، اور تیسرا وہ کپڑا جو پوری باڈی کو کور کرے گا۔ اور نماز میت ہے۔ نماز میت کے بعد شروع کر رہے ہیں غسل کے مسائل سے۔ غسل کے اندر کیونکہ نجاسات میں سے ایک نجاست مردہ ہے، اگر باڈی کو ڈائریکٹ ٹچ کر دیا جائے گا تو آپ کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ اگر باڈی گیلی ہوگی، آپ کے ہاتھ گیلے ہوں گے، نجس ہو جائیں گے اور پھر غسل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آج کے دور میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ گلوز کا استعمال کیا جائے، اور میرے ساتھ کوئی ایک یہاں آ جائے، اور خواتین میں آپ لوگ وہاں پر اسی طرح اگر ہینڈ ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہاں باڈی ہے، اور ایکسیڈنٹ میں ظاہراً اس دنیا سے گزرا ہے یہ مرحوم۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ باڈی پر کوئی رکاوٹ نہ ہو جو کہ پانی کو روکنے سے روک دے۔ مثال کے طور پہ اگر ٹیپ لگا ہے، کوئی گلو لگا ہے، کلر لگا ہے، بالکل جس طرح ہم غسل کرتے ہیں، جس طرح دنیا میں ہمارے غسل ہے واجب غسل، بالکل اسی طرح سے مردے کا غسل واجب ہے۔ 3 مرتبہ سر و گردن کو دھونا واجب ہے، 3 مرتبہ رائٹ سائڈ آف باڈی، 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ آف باڈی۔ باڈی کو چیک کرنا ہے، باڈی کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے پانی نہ پہنچے، اس لیے بہتر یہ ہے پہلے اس کو ایک دفعہ سوپ سے پوری باڈی کو صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد آج کل عام طور پہ سوپ یوز کیا جاتا ہے، گلوز یوز کیا جاتا ہے، اور شاور سے باڈی کو واش کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے دور میں آج بھی بہت جگہوں پر ایک ظرف سے پانی لیا جاتا ہے، ایک لیمیٹڈ پاٹ سے۔ اس کے اندر وہ سارے مسائل جو قلیل پانی کے مسائل تھے وہ لاگو ہوں گے، یعنی اگر یہ پاٹ نجس ہو گیا تو یہ سارا پانی نجس اور غسل نہیں ہو سکتا۔ واش کرتے وقت آپ نے اس کو واش کرتے، اگر یہ باڈی پہ ٹچ ہو گیا گلاس تو یہ نجس ہو جائے گا، تو پھر یہ واپس اس میں جائے گا، یہ پانی نجس ہو گا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح قلیل پانی سے اس میں اٹھنے والی چھینٹیں جو اس میں آئیں گی، اس سے اگین یہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اس لیے آسان طریقہ آج کے وقت میں یہ ہے کہ شاور یوز کیا جاتا ہے، پائپ یوز کیا جاتا ہے، اس سے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل روزمرہ کے غسل کی طرح ہے، فرق یہ ہے یہ غسل 3 چیزوں سے دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے غسل واجب ہے آب سدر سے۔ بیری کے پتوں کا پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے۔ وہ پاؤڈر بنانے کے بعد بیری کے پتوں کا وہ پاؤڈر اس کے اندر
फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इतना डालना है कि ये आब मुजाफ ना हो जाए। ये इस वक्त आब मुजाफ है, अगर इस हालत में रहा, इतना ज़्यादा रहता है तो इससे गुस्ल नहीं दिया जा सकता। आब मुजाफ की डेफिनेशन जो तजुल मसाइल में, पानी के मसाइल में हम पढ़ चुके हैं कि उसका रंग, बू और जायका, कलर, टेस्ट और स्मेल कम्प्लीटली चेंज ना हो, इसलिए हम इसको और कम कर देंगे। और अब इसको जब डाइल्यूट करेंगे पानी के अंदर, तो अब इसका हल्का सा सिर्फ कलर चेंज हो रहा है और पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। दैट्स इनफ। ये वो आइडियल पानी है, बेरी का पानी, जिससे गुस्ल दिया जाए। फिर उसके बाद जब बेरी के पानी से आप गुस्ल दे रहे हैं, अच्छा उसके साथ साथ ये बता दूं, किसी भी मुर्दार की शर्मगाह को, प्राइवेट पार्ट्स को देखना हराम। तो इस वजह से मुर्दे के ऊपर उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इस तरह से एक टॉवल या कपड़ा डाल दिया जाता है, और वॉश करते टाइम भी गुस्ल देने वाला या गुस्ल देने वाली प्राइवेट पार्ट को नहीं देख सकती। इसलिए कोशिश की जाएगी कि पानी इतना डाला जाए, जब आप शुरू करें, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नियत वाजिब है, वली की इजाज़त वाजिब है, पानी का मुबाह होना, मकान का मुबाह होना, ये सब अंडरस्टूड चीज़ें, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। यानी परमिशन होनी चाहिए पानी यूज़ करने की, ये प्लेस यूज़ करने का मुझे इजाज़त होनी चाहिए। उसके बाद मैं शुरू करूँगा कुर्बतन इल्लल्लाह नियत करते हुए, इंटेंशन, गुस्ल दे रहा हूँ इस मुर्दे को, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। सर से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से हर तरफ इसके पानी पहुँच जाए। जब सर और गर्दन हो जाएगा, उसके बाद फिर राइट साइड और उसके बाद लेफ़्ट साइड। जिस वक्त राइट साइड और लेफ़्ट साइड धोई जा रही है, उस वक्त इस तरह से धोया जाएगा कि आप सिर्फ ये टॉवल उठा के इस तरह से पानी अंदर डालेंगे और हाथ से जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा उन जगहों को साफ कर देंगे। ये बेरी के पानी से पहला गुस्ल हो रहा था। दूसरा गुस्ल काफूर से, कोई कीजिएगा, बल्कि एक निकाल दें क्योंकि खराब हो जाएगा। इसका क्या नाम? ओके, कैम्फोर। कैम्फोर जो है वो दरअसल ज़िद्द उफूनत एक चीज़ है। अगर ज़ख़म वगैरह है तो उसको हील करता है, स्मेल को ख़त्म करता है। इस काफूर का इतना होना चाहिए कि पानी के अंदर इसकी स्मेल आने लगे। अब इसके अंदर अगर पानी में इसकी स्मेल आ रही है और ये मेल्ट हो जाता है पानी में, इसको थोड़ा सा यूँ किया जाए, या इसको पहले पाउडर बना लिया जाता है, उसके बाद यूज़ किया जाता है कि पानी में इसकी स्मेल आनी चाहिए। हल्की सी पानी के अंदर इसकी स्मेल आ जाए, ये काफ़ी है। ये एक मरतबा दिखा दें, बस इतनी ही स्मेल आनी चाहिए। इन लोगों को आप एक्सपीरियंस कर लें। फिर दूसरा गुस्ल अगेन 3 मरतबा सर और गर्दन, 3 मरतबा राइट साइड, 3 मरतबा लेफ्ट साइड, और उसके बाद फिर कफन का मरहला शुरू होगा। आज के वक्त में गुस्ल जो दिया जाता है, अभी आपको जुल्फ़िकार भाई दिखाएंगे, शॉवर खोला जाता है, ये हटाना। ठीक जी, शॉवर से गुस्ल देना आसान हो जाता है। पूरा सर और गर्दन इस तरह से धोने के बाद आके राइट साइड धो। कोशिश करेंगे कि इसकी बॉडी में जिन जगहों पर पानी नहीं जाता है वहाँ हाथ से पानी पहुँचाया जाए। और आम तौर पे गुस्ल देने वालों में जो अफराद शामिल होते हैं, आप ये हेल्प करेंगे, मैं ये उठाऊँगा, इस तरह से गुस्ल दिया जाता है। ठीक है, ताकि इस तरफ आ जाइए। किसी भी सूरत में ना तो कोई पार्ट इसका ड्राई रहे
ये वाजिब है गुस्ल देने वाले के ऊपर, और ना ही इसकी शर्मगाह पे, प्राइवेट पार्ट पे निगाह पड़ सके। और इसी तरह ये पूरा वॉश करने के बाद अब इसके लेफ्ट साइड पे इसी तरह से करेंगे, और फिर ये गुस्ल जब कंप्लीट हो जाएगा पैरों तक, तो एक मर्तबा देख लिया जाएगा कि कुछ ज़ख्म या कहीं से ड्राई तो नहीं रह गया। और जब ये कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म करने के बाद फिर इसको ड्राई कर लिया जाएगा, और ड्राई करने के बाद सेकंड स्टेप पे हम जाएंगे, जो कि हुनूत है, काफूर लगाना है। काफूर लगाने के लिए इसके अंदर जो सर नीचे रखा होता है उसको उठा के, एक मिनट जी, सर उठा के, बॉडी उठा के, बाकायदा बॉडी उठा के पीछे से बॉडी वॉश की जाएगी। इसी तरह सर भी इसी तरह, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव बॉडी है इसलिए मैं ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। पूरी बॉडी को इस तरह उठा के मूव किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है, और वो ये कि शीशे वाली बॉटल देंगे कि आजकल अक्सर मुकामात पे अक्सर बॉडीज़ के बंद करके, अक्सर बॉडीज़ के ऊपर कोई ना कोई ज़ख्म या स्टिचेस होते हैं, इस तरह की केप लगे होते हैं जब हॉस्पिटल में किसी की डेथ होती है। उस सूरत में अक्सर मुज्तहिदीन का कहना यह है कि गुस्ल के बाद तयम्मुम कराना भी वाजिब है। मैयत का गुस्ल गुस्ल जबीरा नहीं होता। हम लोगों के अगर ज़ख्म लगा हो, कहीं तक पानी नहीं पहुंच सकता हो, तो हम गुस्ल जबीरा कर लेते हैं। मैयत का गुस्ल गुस्ल जबीरा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद तयम्मुम वाजिब है। तयम्मुम इंशाल्लाह अभी हम करके दिखाएंगे। उससे पहले हुनूत के लिए इस तरह से काफूर को पाउडर कर लेंगे। काफूर का ये पाउडर बनाने के बाद, ताकि ये रुका रहे इसके फोरहेड पे, और इसी तरह से कहाँ हैंड्स पे, जी हाथ उठाइए, ये इसकी हथेली पे, पाम पे, इसी तरह से इसके लेफ्ट पाम पे। अच्छा, जब हमने रखा था इसका मुंह उधर था, इसलिए मैं लेफ्ट वहीं समझ रहा हूँ। और उसके बाद नीज, और नीज के बाद फिर उसको टोज पे ये लगाना वाजिब है। ये लगाने के बाद फिर उसके बाद हम कफन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर गुस्ल जबीरा किया था आपने, तो गुस्ल जबीरा होने की सूरत में अब आपको, यानी कहीं ज़ख्म था, निशान था, स्टिचेस थे बॉडी पे, तो इस सूरत में फिर अब आपको तयम्मुम कराना पड़ेगा। तयम्मुम इंशाल्लाह आप सबको आता है, राइट? तयम्मुम वाजिब है वुज़ू और गुस्ल की तरह। अगर पानी मैसर ना हो, अगर पानी का पहुंचना नुकसानदेह हो, अगर वक्त तंग हो, इन मराहिल में, इन मकामात पे तयम्मुम किया जाता है। तयम्मुम मट्टी पे, कहीं भी मट्टी, ये जो यहाँ मट्टी है इस पे तयम्मुम हो सकता है, ये जो यहाँ मट्टी है इस पे तयम्मुम हो सकता है। वो पत्थर, वो स्टोन जो वॉश ना किया गया हो, जिस पे इवन डस्ट बाकी हो, वहाँ पे तयम्मुम हो सकता है। तयम्मुम करने के लिए मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो मतलब इस एसी के ऊपर यहाँ जो डस्ट है ना, यहाँ तयम्मुम हो जाता है। कितनी डस्ट इनफ है, ये जो जगह है ये आइडियल है, यहाँ तयम्मुम हो सकता है। तयम्मुम के लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से मट्टी पे मारेंगे, ठीक है? मारने के बाद साफ करेंगे थोड़ी सी मट्टी। साफ करने के बाद बिल्कुल इसी तरह वाजिब कुर्बता इल्लल्लाह, तयम्मुम करा रहा हूँ गुस्ले आबे सिदर के बदले, जो बेरी के पत्तों का गुस्ल देना था उसके बदले वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। फिर उसके बाद राइट हैंड पूरा, कोशिश की जाएगी ये पूरा हाथ कवर हो, और इसी तरह पूरा लेफ्ट हैंड। क्योंकि जब हम अपना तयम्मुम कर रहे होते हैं तो यहाँ रख के रिस्ट जहाँ बैंड हो रही है वहाँ से लेकर नेल्स तक, यहाँ पे हाथ रख के हम इस तरह तयम्मुम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह 3 तयम्मुम अब मुर्दे को कराए जाएंगे। एक गुस्ले आबे सिदर के बदले,
दूसरा गुस्ल आब काफूर के बदले, तीसरा वो जो प्योर वाटर से लास्ट गुस्ल था उसके बदले। यहाँ पर बाज़ मुज्तहिदीन कहते हैं इन 3 गुस्ल के बदले तयम्मुम कराने के बाद 4th तयम्मुम भी कराएं एहतियात की बिना पर, मा फि ज़िम्मा विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज प्रिकॉशन, एहतियात की बिना पे कि अगर किसी एक तयम्मुम में गलती रह गई थी तो अब मैं दोबारा एक और तयम्मुम इस मुर्दे को करा रहा हूँ और इस तयम्मुम के अंदर इंशाअल्लाह जो अब तक कोई कमी रह गई थी वो कवर हो जाएगी। और ये ख़त्म करने के बाद इस तयम्मुम को फिर अब इसको कफन के लिए लेके जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगर जो तयम्मुम करना है वो काफूर जो नहीं काफूर से पहले पहले वो काफूर वगैरह जब हमने किया जब सिर्फ गुस्ल दिया था। अगर इस बॉडी को गुस्ल के अलावा तयम्मुम भी देना है तो तयम्मुम बॉडी पाक होने के बाद फिर काफूर लगेगा। जो लोग गुस्ल करा रहे हैं उनका अपना बावजू होना या पाक होना नहीं, जो लोग गुस्ल करा रहे हैं उनका पाक होना या बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं है, ना गुस्ल में, ना कफन में, ना नमाज में, ना दफन में, किसी भी हालत में। लेकिन ऐसा ना हो कि उनसे निजासत मुर्दे तक ट्रांसफ़र हो जाए। और सबसे बेहतर यही है कि ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए। राइट साइड पे खड़े होने या लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं? आ सकते हैं आप, लेफ़्ट साइड आ जाएं, राइट साइड आ जाएं, जहाँ से ईजी हो। सिर्फ आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि ये हर तरफ से गीला है। आपको यकीन होना चाहिए गुस्ल देते वक्त कि ये गुस्ल प्रॉपर दिया गया है। लेकिन जब हम तयम्मुम के लिए वो जो करते हैं हम इसका, तो बॉडी तो पहले वॉश हो गई तो वो गीला ऑलरेडी हो चुका ड्राई है। करें, ड्राई करें। अच्छा, ड्राई करने के बाद अगर जबीरा गुस्ल कराया है, बॉडी पे स्पॉट्स थे, स्टिचेस थे, टेपिंग थी, वॉन्ड थे, ज़ख्म थे, इस सूरत में आजकल अक्सर पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी आती है उसकी हालत ऐसी होती है, इतनी रैप हुई हुई होती है, कुछ जगहों पे इतनी टेपिंग होती है कि आप वो टेप्स निकाल नहीं सकते। तो इस सूरत में गुस्ल के बाद आम तौर पे एक रूटीन है आजकल कि तयम्मुम कराया जाता है। ठीक। Another question? अगर ये जो पानी टेबल पे या जो भी जिस तख्त पे दे रहे हैं उसमें, तो जो पानी से आप गुस्ल दे रहे हैं वो पानी उस पर गिर रहा है, तो नीचे बॉडी क्यों रह गया? जब आपने उठा के लगाया आपने बॉडी को वहीं रख दिया, तो उसमें शिकाल नहीं है? नहीं, उसमें कोई शिकायत नहीं। नॉर्मली उसमें बीच में कोई होल हुआ हुआ होता है जहाँ पे गुस्ल दिया जाता है। वो नॉर्मल वो पूरी ड्रेनेज बनी भी होती है, लेकिन वो नजिस नहीं है, बिल्कुल जिस तरह आपकी बॉडी का वो, उससे कोई मुश्किल नहीं। ठीक। ओके। कफन हम लास्ट वीक कर चुके थे, इसलिए अगर आप लोग खुद एक गुस्ल अब आप लोग करेंगे, हम देख रहे हैं। आइए, कौन आएगा? जी, अब आप लाइव बंद कर दीजिए। शुक्रिया।